Good morning students. Myself Narendra sir. My YouTube channel is Biology with नरेंद्र सर। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक होगा ये स्टैंडर्ड क्लास 12th का है और टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले के वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया है और उसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिए हैं। अब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के बाद आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वीडियो को जब बना के लोड करेंगे तो आप इसको भी देखिएगा और YouTube पर वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जैसे हमने मेल में बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। As it is, female reproductive system is also divided into two parts. One is primary sex organ and secondary is the secondary sex organ. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ओवरी। ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ओवरी इज पियर शेप ए almond shape structure 2 to 4 centimeter in length. It is found in the pelvis region in female. Ovary produce ovarian hormone as well as play an important role in formation of gamete. The formation of gamete in ovary is known as oogenesis. oogenesis process ओवरी में होता है और ओवा का प्रोडक्शन भी ओवरी से होता है। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना आर बर्थ कैनाल, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो ओवरी है it is covered by ovarian membrane that is divided into two zones. One is cortex region and other is medulla region. Ovary attached with the mesovarium that is called ovarian ligament and it is also attached with the fallopian tube. When ovums are discharged from ovary after menstruation or after menstrual cycle, then the ova is caged by a finger like projection that is called fimbriae and the keep like structure called infundibulum, and the large parts and middle parts of the fallopian tube that is called ampulla, and the last part which attached with uterus is called isthmus. तो स्टूडेंट्स isthmus, ampulla, infundibulum, these are the parts of fallopian tube or oviduct. उसको हम fallopian tube या oviduct कहते हैं। तो fallopian tube के 3 पार्ट्स हो गए, isthmus, ampulla and infundibulum, and a finger like structure which is found in the last part of the fallopian tube that play an important role for catching the ova after ovulation, and it play an important role for transfer the ovum in fallopian tube, where in fallopian tube ovums are moved upside towards uterus with the help of peristalsis movement. तो जैसे ही ओवम इनफंडिबुलम से एम्पुला रीजन में जाता है उसी समय इधर से स्पर्म जाकर के इसको फ्यूज करता है। तो मैक्सिमम चांसेस स्पर्म के और ओवम के फ्यूज होने के एम्पुला रीजन में होता है और isthmus रीजन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस कम इन द यूटेराइन वाल, यूटेरस के जो कैविटी होती है इसके थ्रू होते हैं यहाँ पर आता है। और जब जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, वो जाइगोट आ करके यूटेरस के वाल से अटैच्ड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड द यूटेरस इज inverted pear shape structure
that has 3 layer: perimetrium outer covering, myometrium middle covering, endometrium inner layer. तो endometrium play an important role in menstrual cycle, and myometrium is an important layer that play an important role for contraction at the time of childbirth or delivery. Perimetrium is the outer wall that protect uterus. तो स्टूडेंट इस प्रकार से एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम ये तीनों वाल किसके होते हैं? वाल ऑफ यूटेरस और ओम्ब। तो ये ओम्ब या यूटेरस के वाल होते हैं, और इस इनर वाल के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इन द इनर वाल ऑफ द यूटेरस फॉर्म ए कैविटी दैट इज कॉल्ड यूटेराइन cavity. That cavity play an important role. That cavity provide the site for implantation of the zygote. तो इस प्रकार से ये ओम्ब या यूटेरस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओम्ब कहा जाए या यूटेरस कहा जाए, बात एक ही होती है। अब थर्ड पार्ट, हमने प्राइमरी आर्गन की बात की, सेकेंडरी आर्गन में फैलोपियन ट्यूब की बात की। फैलोपियन ट्यूब इज इलांगेटेड अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। दैट अटैच फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, ओवरी से यूटेरस तक फैली हुई वाल। इसके तीसरी पार्ट हमने बता दिया था, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, इसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। द यूटेरस, यूटेराइन वॉल, यूटेराइल ओपनिंग इज descending in order, open into the vagina or birth canal with through cervix and cervical canal. तो ये जो यूटेरस होता है, यूटेरस की ओपनिंग होती है वेजाइना में, और इस वेजाइना और यूटेरस के बीच में जो जंक्शन होता है इसे सर्विक्स कहते हैं, और इसके बीच के कैनाल को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये डायग्राम जो दिखा रहा है, डायाग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसका सेक्शन कट करके इसमें दिखाया गया है। तो एक्सटर्नल जेनाइटलिया जो वेजाइना में होता है, ये क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटलिया। ये तो वेजाइना है और बर्थ कैनाल हो गया। अब इसके हम एक्सटर्नल जेनाइटलिया की बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटलिया, तो एक्सटर्नल जेनाइटलिया में क्या क्या होता है? इस वेजाइना का जो अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर होता है प्यूबिस रीजन। तो ये फर्स्ट रीजन होता है प्यूबिस रीजन। तो प्यूबिस रीजन थिक होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, उसके कारण वो फूला हुआ पार्ट होता है, स्वेलिंग पार्ट होता है। दैट आल्सो कंटेन, इट्स स्किन कंटेन हेयर। एंड द सेकेंड रीजन इज, first is the pubis, second is the labia majora, third is labia minora, and next is clitoris and birth canal. ओके, तो ये प्यूबिस रीजन होता है, अपर पार्ट जो स्वेलिंग पार्ट होता है, हेयर कंटेन करता है। लैबिया मेजोरा इज आउटर फोल्ड दैट कवर्ड लैबिया मेनोरा। तो लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा कवर्ड लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा कवर्ड द वेजाइनल ओरिफिस एज वेल एज द यूरिनल ओरिफिस, एंड क्लाइटोरिस इज आल्सो कवर्ड बाय द लैबिया माइनोरा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स लैबिया मेजोरा सबसे आउटर कवरिंग होती है वेजाइना की, यहाँ भी हेयर पाए जाते हैं। लैबिया माइनोरा जो होती हैं, इसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, दैट सेक्रेट सम लुब्रिकेंट्स दैट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन sexual intercourses, that help in sexual intercourses. And the clitoris at the time of excitement, at the time of excitement, clitoris is erectile part, it is finger like structure, it play an important role in
excitement, and except these there is no any role of clitoris, and the birth canal or vagina, it is 5 to 7 inch centimeter in 5 to 10 or 7 centimeter in length, and it opens into the cervical कैनाल। तो ये वेजाइना जाके सर्वाइकल कैनाल में खुलता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स वेजाइना का काम क्या क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वेजाइना। वन फंक्शन इज इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कराता है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस और क्वाइटस, इसका दूसरा नाम है क्वाइटस। तो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस या क्वाइटस में हेल्प करता है। सेकंड काम इसका क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो सेकंड काम इसका है मेंस्ट्रुअल फ्लो कराना, मेंस्ट्रुअल फ्लो। पहला काम हमने क्या बताया, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस मीन्स रिसीव द पेनिस ऑफ मेल, एंड सेकंड इज मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंड थर्ड इज चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ आर पार्चुरेशन। डिलीवरी के समय भी बर्थ कैनाल के थ्रू चाइल्ड रिमूव आउट होता है, बाहर आता है। तो वेजाइना के 3 काम हो गए। तो वेजाइना आर बर्थ कैनाल इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेथ्रल सिस्टम। फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है वो सेपरेट होता है, और जो बर्थ कैनाल होता है वो सेपरेट होता है। दोनों दो एंड से ओपन होती हैं। तो वेजाइना का हमने फंक्शन बता दिया, और यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिन को रिमूव आउट करता है। व्हाइल इन मेल में हमने क्या बताया था, द जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज यूरिन बोथ आर रिमूव आउट फ्रॉम वन पाथ दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। मेल में यूरिन और जेनेटिक मटेरियल और सीमेन दोनों एक ही पाइपलाइन से डिस्चार्ज होता है, जबकि फीमेल में बर्थ कैनाल सेपरेट होता है और यूरिन रिमूव आउट होने के लिए यूरिनल ओरिफिस होता है। इसीलिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूरिनोजेनाइटल सिस्टम नहीं कह सकते, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या मूत्रोजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप जान लिए हैं। आई थिंक इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड को हम ब्रेस्ट कहते हैं। तो ब्रेस्ट का क्या काम है, ब्रेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल साइकिल, इन ओवुलेशन, इन फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड केयर। इतना काम होता है किसके थ्रू, मेमरी ग्लैंड से। फीमेल हैज 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। फीमेल में 1 पेयर मेमरी ग्लैंड होता है। इस मेमरी ग्लैंड के थ्रू कितने काम्स होते हैं, पहला ओवुलेशन में हेल्प करता है। क्या काम कराता है हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 ओवुलेशन, एग रिलीज आउट कराने में हेल्प करता है। नंबर 2 फर्टिलाइजेशन। नंबर 3 प्रेगनेंसी। नंबर 4 पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। नंबर 5 चाइल्ड केयर। इसमें चाइल्ड केयर होता है, पेरेंटल केयर के समय माँ बच्चे को दूध भी पिलाती है, सक आउट मिल्क होता है तो उसको जो बच्चा मिल्क को लेता है। और इस प्रकार से मेमरी ग्लैंड 1 पेयर्स होती हैं, जिसके अंदर फैटी जो है टिश्यूज़ भी होते हैं, फैट डिपॉजिट्स होते हैं, और क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, इम्पुला रीजन्स होता है। तो स्टूडेंट्स हम अगर बात करते हैं मेमरी ग्लैंड की, तो मेमरी ग्लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फीमेल में है। दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल इंटरकोर्सेस फॉर एक्साइटमेंट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के से लेकर के और जितने भी वर्क्स होते हैं सब में मेमरी ग्लैंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जान लिया। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, और ओवरी सेक्रेट क्या करती है, फीमेल गैमीट दैट इज कॉल्ड ओवम, एज वेल एज इट आल्सो सेक्रेट
द स्पेशल फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन दैट इज कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन, and the secondary or sex organs are fallopian tube, uterus and vagina and mammary gland। ये जितने भी हम इसके अलावा बताए हुए सब क्या हैं, सहायक अंग हैं, एसेसरी पार्ट हैं रिप्रोडक्शन में, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी और नेसेसरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें बताया। अब बाकी इनमें गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट बनने के बाद उसका एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, एम्ब्रियो कंप्लीट फार्मेशन होता है तो उस समय फीटस का डेवलपमेंट हो चुका होता है, फिर पार्चुरेशन क्या है, आफ्टर पार्चुरेशन इसका जो है पेरेंटल केयर कैसे होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।